ॐ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शान्ति शांति शान्तिः। शांति। हरिः हरि ओम। ओम तत्सत। तो अब जो हम शुरू करेंगे, तो आज हम कर रहे हैं वो जीवन मुक्ति विवेक के जहाँ जिस पोर्शन तक हमने पढ़ा था उसके आगे करेंगे। और जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर लिया जा रहा है, वो है वासना नाश प्रकरण। यही है ना? हाँ महाराज, वासनाक्षय। वासनाक्षय प्रकरण है। और उसमें शुरू शुरू में अभी जो बातचीत हो रही है, वो जो विचार हो रहा है वासनाक्षय का प्रकरण, अभी आज हम शायद कर प्रारंभ कर सकेंगे। इस समय थोड़ा विचार किया जा रहा है, ये भी अच्छा है। उसका हम कुछ पोर्शन जो है वो फिलोसॉफिकल है, उसको हम स्किप ऑफ करने का प्रयत्न करेंगे। तो कौन पढ़ रहा है सबसे पहले? हाँ महाराज, मैं पढ़ूं? पढ़ो, करो। हाँ। Bondage is of several kinds. Expressions like not of ignorance, conviction of being non-self, not of the heart, doubt, actions, condition of not desiring everything, death, rebirth, etc., have been used in the scriptures to indicate them. All such bonds are surely removed by knowledge. There are several Shrutis which express the same. He who knows this, that is Brahman, which is hidden in the secret place of the heart, he, even here on this earth, O Soumya, cuts off the knot of ignorance. Mundaka Upanishad. He who knows Brahman verily becomes Brahman himself. Ibid. The knot of the heart is cut asunder. All doubts get resolved. All actions terminate when he who is both high and low is seen. He who knows Brahman, who is placed in the secret place of the heart and also in the highest sky, realizes all desires along with Brahman, the omniscient. Taittiriya Upanishad. Only by knowing him does one pass over death. Shvetasvatara Upanishad. He who has proper understanding, he who has control over his mind, he who is ever pure, attains that state from which he is not born again. Kathopanishad. Whoever knows thus, I am Brahman, verily becomes all this. Brihadaranak Upanishad. These and such other Shrutis that denote the removal of bondages like non-omniscience, etc., may be cited here in this connection. Okay. तो यहाँ पे क्या किया है? इसमें शुरू में कहा है कि ज्ञान से हमारी अविद्या की ग्रंथियां जो है, ये जो नॉट्स, जिसे हम नॉट्स कहते हैं, बंधन कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। ये बात स्पष्ट रूप से कही है। और उसको बताने के लिए शास्त्रों से बहुत सारे कोटेशन दिए गए हैं। ये कोटेशन प्रसिद्ध कोटेशन है, खास करके मुंडक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद इत्यादि उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि से सबसे ये कहा गया है। तो यहाँ पे इसमें कोई खास विशेष बात नहीं है। ये जानना चाहिए कि ज्ञान से हमारी मुक्ति होती है, तत्व ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। ठीक है जी, आगे चले। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? अच्छा, ठीक है। द एफोर्ट से डेलिवरेंस नहीं, वो छोड़ दीजिए, 4 लाइन। गो टू द नेक्स्ट पेज, 122। अच्छा, 130। ये पढ़ लेना, ये पढ़ ले, ये अच्छा। तो नहीं, ये 4 लाइन है उसके। नहीं, पढ़ने का है उसको। नहीं तो फिर उसके बाद भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हाँ, ठीक है।
The aforesaid deliverance through release of the body, Vivek Mukti, is Videha. Videha Mukti, Videha Mukti is to be taken as happening simultaneously with the dawn of knowledge, because the bonds superimposed on Brahman through ignorance, when destroyed by knowledge, are not to be perceived then, nor is their reappearance possible. The simultaneity of knowledge and Vidha Mukti has been dealt with by Shankara, the commentator, while explaining the Samanvaya Shastra. Samanvaya Shastra, Samanvaya Sutra. and also in the Brahma Sutra. Brahma Sutra. Brahma Sutras. Thus, when that Brahman is realized, there will occur non-clinging and destruction of previous and subsequent sins, because it is so declared by the Shruti. अच्छा, देखो अब क्या है, यहाँ पे एक बात शुरू कर रहे हैं, मुक्ति की बात शुरू की ना, कहा शुरू में मुक्ति। अब कहते हैं ये कौन सी मुक्ति होती, और यहाँ पे डिस्कशन होगा दो प्रकार की मुक्ति की बात। एक तो है जीवन मुक्ति और दूसरी है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति, और इसके ऊपर दो मतभेद हैं, विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं। उसको समझाते हुए यहाँ पे बहस कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा तब क्या होता है कि उसके बाद में अनारब्ध, जो प्रारब्ध कर्म के साथ बचे हुए जो कर्म है उसको क्षय करने के लिए कुछ समय लगता है, और उसके बाद में वो मुक्त होता है। मतलब यह है, ये समझ लीजिए कि हमारे जो कर्म है, तो हमने पहले जन्म में कुछ हुए थे, इस जन्म में कुछ हो रहे हैं, और इसके बाद में अगले जन्म में भी कोई प्रारब्ध कर्म होंगे तो उसके तरह मिलेगा। तो अच्छा, लोगों का कहना है कि जब ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ या ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये तत्व ज्ञान हो गया तो ये मुक्त हो गया। तो ये क्या हुआ, जीवन रहते रहते मुक्त हो गया। जी अच्छा, अच्छा। अब उन्होंने कहा कि विदेह मुक्ति किसे कहते हैं? मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद में मुक्ति, विदेह मुक्ति है ना। इसमें ये समझ लीजिए हमारा जन्म, अगला जन्म नहीं होने वाला। अच्छा, अगला जन्म हमारा नहीं होगा, हम इसी जन्म में मुक्त हो गए। अच्छा अच्छा। लेकिन उन लोगों का कहना है कि इस जन्म में नहीं, जब तक रहना, इस जन्म में रहना पड़ेगा। जी। दूसरे लोगों का मत यह है कि उन्होंने तुमने ये जब जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त स्वभाव हूँ, तो फिर मेरे इस शरीर से संबंध का प्रश्न नहीं उठता। ज्ञान समकाल मुक्ति, जिस क्षण मैंने वो ज्ञान हुआ उसी क्षण में मुक्ति हो गई। कैसे मुक्ति? जीवन मुक्ति भी हो गई है, विदेह मुक्ति यानी देह से मेरा संबंध भी छूट गया है। तो इसके ऊपर वहां से लेके शुरू करके 21 पेज तक के बराबर कंटिन्यूसली डिस्कशन होता रहेगा। इसको हमें करना क्या जी, ठीक है जी। अच्छा, तो अब वो देखो, आगे चलो 21 पेज पे देखो तो 122। महाराज ये समन्वय सूत्र और ये ब्रह्म सूत्र अलग अलग है ना? एक ही चीज है, एक ही है। अच्छा, और ये ऑब्जेक्शन ये पढ़ेंगे? नहीं ऑब्जेक्शन वगैरह बहुत सारे हैं, उनको छोड़ दो। सब नहीं महाराज जी, अपन ने बात सब पेज छोड़ दिए। नाउ वी आर कमिंग ऑन पेज नंबर 122। जस्ट मिनट, यस, जब मैं पढ़ रहा हूँ मेरी बात सुनो, तो चुप रहो जी। 121 पेज पे लास्ट पैसेज कोड देखो तो। अच्छा, 121 अच्छा, 121 का लास्ट पैसेज मतलब
क्लैरिफिकेशन में इंग्लिश वो बोल रहे हैं, पढ़ो। क्लैरिफिकेशन है हमारा। Hence, in attainment of Vidya Mukti, the superiority of the knowledge of reality, which is the direct means to it, comes to be established. The effacement of latent impressions and the dissolution of the mind, which are the means to knowledge, become subordinate to it. ये कौन से These are पेज का है? ये 121 का लास्ट पैरा में है. Hence in the attainment वो of Vidya last Mukti, लाइन last Last paragraph. page. Hence, in the हाँ. attainment of the Vidya Mukti, the superiority of the knowledge of reality, which is the direct means to it, Vidya Mukti, comes to be established. The effacement of the latent impressions and the dissolution of the mind, which are the means to knowledge, become subordinate to it. यही है महाराज जी. अच्छा, मैं समझाता हमारे ज्ञान के 3 उपाय हैं. क्या है? तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय. 3 है ना? ये तो तीनों हम मान रहे हैं, शुरू से मान के चल रहे हैं. हाँ. तत्व ज्ञान जो है वो क्या है कि तत्व ज्ञान जो है वो, जहां तक विदेह मुक्ति का प्रश्न है, उसमें तत्व ज्ञान जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. अच्छा. और अगर जीवन मुक्ति होवे तो उसके लिए मनोनाश और वासना क्षय, ये जो है ये जीवन मुक्ति के लिए. आप पढ़ो, उसको फिर से समझ में आ जाएगा. अच्छा. नेक्स्ट पढ़ेंगे. नहीं, वो एक बार और पढ़ो. वही वाला. Hence, in the attainment of Vidya Mukti, the superiority of the knowledge of reality, which is the direct means to it, Vidya Mukti, comes to be the effacement of latent impressions and the dissolution of the mind. अरे बंद करिए रीता जी ये म्यूट करिए आपका. Impressions that cause the destruction of demoniac impressions are the means of acquiring knowledge. This is to be found in Shrutis and Smritis. He who has become calm, self-controlled, withdrawn to himself, forbearing, collected and composed should see the self within his own body. Brihadaranyaka Upanishad. The Smriti also tells the same thing: humbleness, the unpretentiousness and non-violence, forbearance, uprightness, service to the teacher, purity, steadfastness and self-control, indifference towards the sense objects, absence of egoism, reflection about the evil of birth and death, old age and sickness and pain, non-attachment and non-identification with oneself, with home, wife and children, etc. Even-mindedness amidst the desirable and undesirable happenings, unanswering devotion in me, unswerving devotion in me through the yoga of non-separateness and resorting the lonely place, distaste in the community of people, constancy in the knowledge of the self, thinking of ultimacy of the knowledge of truth. This is defined to be the knowledge which is the antithesis of this is ignorance. In Bhagavad Gita, identification of one's ego with another is called self-identification, abhishwanga. Deriving it in the sense of is known by this. The term jnana here means that which leads to the knowledge. हो गया. अब क्या किया है
ये बता दिया। उसके बाद में ये जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति के बारे में कोटेशन दे रहे हैं शास्त्र से। कोटेशन, हाँ। और वहां पे बताने का प्रयत्न क्या कर रहे हैं, दो प्रकार की वासनाएं हैं, याद रखो। आगे दिया भी है, कहीं जगह बताया है हमने कि दो प्रकार की वासनाएं होती हैं। वो है आसुर वासना और दैवी वासना। आसुरी वासना और दैवी वासना, और उसका वर्णन दोनों का भगवत गीता में कहते हैं। अयम अद्य माया लभ्य अयम प्राप्त से मनोरथम अयम अस्मित में करिष्यते इत्यादि है ना। मैं यह हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वो है आसुर संपद का जहाँ पर वर्णन है, वो वहां पे आसुरी संपद वर्णन है। और अभी जो किया है वो क्या है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्यों पाचनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। दैवी संपत्ति। इंग्लिश पढ़ा। ये क्या है, ये दैवी वासना है, ये ज्ञान के साधन है, याद रखो। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको बात बताया गया है कि ज्ञान के साधन, और पूरा बताया है क्या, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम इति ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम इति अन्यथा। और उसके बाद में उन्होंने समझाया कि अस्मिन अहम बुद्धि अभिशंक, अहंकार बुद्धि जो है वो अभिशंक है इत्यादि, इसको थोड़ा सा समझाया गया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये है वासनाओं को जीतने की बात अब चालू करने वाले, इसलिए यहाँ पर ये कहा। और ये भी कहा ये वासनाएं जो है, अभी वह क्या कहा था, ज्ञान जो है वो मनोनाश और वासना क्षय के लिए उपयोगी है। और अब कह रहे हैं कि वासना क्षय अगर हम करेंगे तो हमें तत्व ज्ञान होगा। याद रखिए, यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। ये डिस्कशन चल रहा है मनोनाश, वासना क्षय और तत्व ज्ञान, इन तीन को लेकर इस किताब में बातचीत हो रही है। तो वो बोल रहे हैं कि ये तीनों परस्पर संबंधित हैं। ज्ञान होगा तो आपको मनोनाश और वासना क्षय भी होगा, और अगर वासना क्षय करोगे तो उससे तुम्हें ज्ञान भी प्राप्त होगा। ये इम्पोर्टेंट बात बताएंगे। तो महाराज जी ये तीनों इंटरलिंक है, वो ज्ञान का साधन है, यहाँ बताए महाराज जी। तो ये तीनों इंटरलिंक हुए क्या? हाँ, हमेशा, जरूर जरूर जी, यही बताने का कोशिश कर रहे हैं। महाराज अगर तुम मनोनाश करोगे तो ऑटोमेटिकली तत्व ज्ञान हम तुमको उदित होगा, तुम तत्व ज्ञान के अधिकारी होगे। हाँ, तो और मन को इसका मतलब ये करोगे, मन को नाश करने की प्रयत्न करोगे तो तत्व ज्ञान का साधन हो जाएगा। ये आगे बता। सो दे आर कभी कभी देखने को मिलता है, इंटरडिपेंडेंट है ना, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, कभी कभी देखने को मिलता है कि किसी का वासना क्षय हो गया पर उनको तत्व ज्ञान में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, फिर क्या? ऐसा भी हमने देखा। ऐसा कैसे होता है? वो तो फिर ऐसा है कि वो जो है वो अशास्त्रीय बात वासना क्षय हुई है, याद रखो। हाँ, यानी ऐसा भी है लोग जो बिल्कुल नास्तिक हैं, भगवान से लेना देना कुछ नहीं, केवल उनको इच्छा नहीं है जीवन में, संसार में भोग की इच्छा नहीं है, थोड़ा सा जगत का कल्याण किया लेकिन उसके सिवा कुछ बस। हाँ, ठीक बोल रहे। लेकिन जो साधक है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए वासना क्षय बहुत इंपॉर्टेंट, बिना उसके। ये तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के जमाने में जब लोग जो है सब देखते हैं कि अरे संसार में कुछ नहीं तो छोड़ देते हैं, लेकिन ज्ञान की तरफ मन नहीं जाता उन लोगों। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल भी ज्ञान की तरफ मन नहीं है, और जो ज्ञान की तरफ जाएंगे उस पर हंसेंगे। ठीक है, महाराज ये लाइन दोबारा एक बार समझाइए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वंस ईगो विथ अनदर इज कॉल्ड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। तो विथ अनदर मतलब अनदर ईगो हो गया, ये लाइन को थोड़ा नहीं, आइडेंटिफिकेशन विथ समथिंग एल्स, जैसे देह पर, कौन सा बताओ तो, एक मिनट, मेरे पास वो नहीं है, वो मैं लास्ट वाला है महाराज, लास्ट लाइन। अनदर पर्सन होगा ना, जैसे एक वन नहीं, पर्सन, अनदर पर्सन नहीं, उपाधि के ऊपर पर्सन हो सकता है, वस्तु, देह, मन, सब हो सकता है। एक मिनट महाराज, मैं पढ़ूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वंस ईगो विथ अनदर इज कॉल्ड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, अभिसंग। तो ये जो अभिसंग की बात कर रहे हो ना? हाँ, अभिसंग, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा।
अन्यस्मिन् अहम बुद्धि अभिष्वंग। जी अन्यस्मिन् अहम बुद्धि अभिसंग। वही ठीक है। हाँ यही है आइडेंटिफिकेशन महाराज। once ego with another is called self identification, अभिसंग। अच्छा ये बात है। आसक्ति ही अनभिष्वंग। पुत्रदार, वो आगे तो बता दिया। तो मेरा पुत्र। पुत्रदार गृह आदिशु अनुसंग। लिखा हुआ तो क्लियर तो लिखा हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वंस इन ईगो विथ पुत्र दार गृह, ओ हाँ स्त्री पुत्र गृह Exactly. इत्यादि के साथ आसक्ति। आइडेंटिफिकेशन, ये मैं हूँ। हाय मेरी माँ, हाय मैं मरा, माँ रो रही है तो उसने माँ बच्चे से एक आसक्ति कर ली। मेरा तो सब कुछ लूट गया, मैं बचा ही नहीं हूँ, घर घर जल गया है तो समझते खत्म हो गया। इस Me पद and पे my लिखा हुआ है। ये तो अभिष्वंग है। महाराज अभिष्वंग अपने देह के साथ भी हो सकता है। रहे तो है, पूरा ही तो। बस ठीक। तो फिर उसके बाद जो लाइन है, नित्यं च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इसका क्या वो मतलब? ये जो है उससे कोई संबंध है। ये एक गुण है अभिषंग। अच्छा। अनभिष्वंग यानी आसक्ति नहीं होना, एक गुण है। अच्छा। और दूसरा गुण है समचित्तत्व, सदा चित्त की समता बनी रहे। कब? समता। इष्ट अनिष्ट उपपत्ति। अच्छा। शुभ अच्छा, ये दोनों अशुभ अलग अलग क्वालिटी में होगी। अपना मन बना रहे, स्थिर बना रहे, समचित्त बना रहे। हम्म ठीक मान। और बाकी देख लिया वो हाँ भगवत गीता का है। ये सरल है, कोई कठिन ज्यादा नहीं है ये। जी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निरंतर सर्व आत्मा का ज्ञान, नित्यत्व, सदा ये ज्ञान बना रहे कि मैं आत्मा हूँ। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व। तत्व ज्ञानाथ दर्शनम, तत्व ज्ञान जो है यानी आत्मा का, सत्य का जो ज्ञान है उसका अंडरस्टैंडिंग होना, इनको ज्ञान कहा। यानी इनको ये है दैवी संपत्ति या शुभ वास्तु। जी ठीक है जी इसके आगे चलिए। जी पढ़ता हूं मैं। The dissolution of the mind is also recognized as a means of knowledge in the Shrutis and Smritis. But then he, pure-hearted because of attaining knowledge, sees in meditation him Atman, who is without parts, Manduka Upanishad says. And also the wise man, realizing the Lord through attainment of concentration of the self, leaves behind both the pleasure and the pain. Kathopanishad says. The Smriti says, having given up sleep, having controlled their breath, and having won over their sense and satisfied, that what effulgence the yogis see through meditation, salutation to that. महाभारत से। तो क्या है, जब निद्रा, निद्रा को जिसने जीत लिया, श्वास को जिसने ले लिया, जो संतुष्ट है, इंद्रियों पर संयम है, जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ज्योति को देखता है, उसको, उस ऐसे व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। विजन विच इज इंटेलिजेंस एब्सोल्यूट, यानी विद्यात्मक ज्योति मानव को दर्शन करता है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो यही वही बात उसको बताते हैं कि ये जो इनमें प्रतिष्ठित हो जाता है उसको आप जीवन मुक्त कहिए, जीवन मुक्त का वर्णन किया जाए। तो महाराज जी ये जो ज्योति है दैट इज विद इन सेल्फ, आत्म ज्योति। हाँ जी। तो सर ये महाराज जी ये एक्चुअली रियलाइजेशन कैसे होता है कि हम जो ज्योति देख रहे हैं विधि? अरे भाई अभी इतनी जल्दी मत करो रियलाइजेशन के, तो क्लास सब लोग अगर रियलाइजेशन कर लिया तो क्लास से चलेगी, ये तो जरा सोचो। नहीं चलेगी। तो मतलब मनोनाश मतलब महाराज, मतलब जैसे अगर पतंजलि योग शास्त्र में ऐसे यम नियम है, जो यम नियम में प्रतिष्ठित है उसका मनोनाश हो गया। हाँ ये यम नियम आसन मनोनाश का ये सारे उपाय है ना, योग चित्त वृत्ति निरोध।
ये है मनोनाश के उपाय। जी। और जो उसमें धारणा ध्यान समाधि से प्रतिष्ठित हो जाता है, उसका मनोनाश हो जाता जी। है। अच्छा, तो चलो कहते हैं कि ये यही बताने का प्रयत्न करते हैं, तदेव तत्व ज्ञानादीनाम त्रयाणाम विदेह मुक्ति जीवन मुक्ति वशात गुण प्रधान व्यवस्था से था। उसके बाद मैंने लाइन पढ़ो तो, thus in this manner mutual primary and secondary importance of knowledge and the rest of the determined according to विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति में ज्ञान इंपॉर्टेंट है Yes. और जीवन मुक्ति में मनोनाश और वासनाक्षय इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नहीं और कुछ जी, नहीं। जो चलिए आपने आगे चले। ये लिखा है, thus the relative importance of the knowledge of truth and the like factors are determined according to the need of Videha Mukti and Jivan Mukti. ठीक है, That is for Videha Mukti, knowledge of truth is the principal means, and for Jivan Mukti, dissolution of the mind and the effacement of latent impressions are the principal means. ठीक है। जी लेकिन जहां तक याद रखो, जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, हम लोगों के लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जी ये तो विचार के लिए किया जा रहा है, लेकिन हाँ। तीनों इम्पोर्टेंट। चलो, इसके बाद में एक डिस्कशन आ रहा है, उसमें क्या ऐसे कैसे चले होगा, यानी यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये तीनों इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। पढ़ो तो। जी, objection. When a Vividisa, Samyan Singh, having accomplished these three means, reaches the stage of Vidvat, विद्वत संन्यास। Vidyat Sanya, will they accompany him in that state, or should he attempt again to get them afresh? The former is not possible because, like the knowledge of truth, if the other two means accompany and are available without fresh effort, they are bound to lose primary importance. Regarding them as primary would become uncalled for. The latter two is not possible because in case of knowledge of truth has to be accomplished afresh like the other two, then it is bound to lose primary importance. Regarding that as primary would be uncalled for. ये ऑब्जेक्शन बताया इन्होंने। ये कुछ नहीं है, इसे यही बताने करने डिस्कशन कर रहे हैं कि आजकल के में क्या तीनों एक साथ करना चाहिए कि एक एक को करना चाहिए और हाँ। कैसे करना चाहिए। अगर जीवन मुक्त हो गए हम तो उसके बाद में ज्ञान की आवश्यकता है क्या? यदि विजय मुक्त हो जाए तो फिर मनोनाश वासनाक्षय की आवश्यकता है क्या? इसके ऊपर बड़ा लंबा डिस्कशन है और उसके सिवाय और कुछ। Can you kindly clarify which page are you on? The page is 125. Thank you. Sorry. Yes. भुवन जी पढ़िए, आगे का है, बहुत बड़ा लंबा है, आप पढ़ रहे हैं। महाराज इसको एक बार और एक्सप्लेन करिए, नहीं समझ रहा। नहीं, इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है। देखो, हाँ। वो डिस्कशन करने के लिए बताना चाहते हैं कि दो चीजें हैं, एक तो है जीवन मुक्ति और एक है विदेह। हाँ। और विदेह मुक्ति के लिए है ज्ञान आवश्यक है, ज्यादा इम्पोर्टेंट। और जीवन मुक्ति के लिए है मनोनाश और वासनाक्षय। मतलब क्या है कि मनोनाश, अगर मन का एकाग्रता हो गई, मन चंचल नहीं हुआ और वासनाएं हमें जगह डिस्टर्ब नहीं करती हैं, तो मैं जीवन मुक्त हो गया, है ना। तो याद रखिए, मेरा ये कहना है कि हम लोगों को तीनों की आवश्यकता है। हमारा मन तो कंट्रोल नहीं होता, वासनाएं हमको तंग करती है, जीवन मुक्त कैसे होंगे? अब वो दूसरा दिशा के नहीं, जो ज्ञानी है वो क्या है, वो जीवन मुक्त चिंता जगत की चिंता ही नहीं करता। वो उसका मनोनाश न भी होवे, वासना क्षय न भी होवे, तो भी वो जगत से मिथ्या समझता है, ये करता है। तो वो क्या होगा, वो विदेह मुक्त हो जाएगा, लेकिन जीवन मुक्त नहीं होगा। इस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और कुछ नहीं है। हमारे को क्या करना है, तीनों की आवश्यकता है हमारे जीवन में, यथासंभव तीनों को करना है। अब इसमें एक और आगे यहाँ पर आएगा, आगे पढ़ेंगे जब हम, दो प्रकार के साधक होते हैं, कृतोपास्ति और अकृतोपास्ति। यानी क्या है कि उसने एक है, उसने ब्रह्म ज्ञान हुआ, लेकिन उसके पहले उसने उपासना नहीं की थी। उपासना क्या किया, वो शास्त्र ने, उसने गीता पाठ नहीं की, उसने रेगुलरली
मेडिटेशन नहीं किया, उसने पूजा नहीं की, उपासना करते हैं, उपासना भगवान की मूर्ति का उपासना किया, तो उपासना से क्या होता है कि मन नियंत्रित हो जाता है। अब दो प्रकार के साधक बताते हैं, एक तो है कि जिन्होंने उपासना नहीं की, और एक है जिन्होंने उपासना की, और दोनों ज्ञानी हो गए। हाँ, अब इसके ऊपर झगड़ा यहाँ पे करेंगे। yes. अगला है तो महाराज। इसमें ये कहते हैं कि जो उपासना करते हैं वो ज्ञान के मुख्य अधिकारी यानी कट्टर अधिकारी हैं। ये सीधी बात समझ में आ गई। क्यों? उपासना करने से थोड़ा मन एकाग्र हो जाता है, मन नियंत्रित हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, और इसलिए वो उत्तम अधिकारी हो जाते हैं। हाँ, और जो ऐसा नहीं करते हैं वो उत्तम अधिकारी नहीं होते हैं। जी। तो इस प्रकार से ये बात करते हैं कि मनोनाश और वासना क्षय है, ये वो लोग, कुछ लोग हैं थोड़ा समय के लिए कर लेते हैं, बस ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ज्ञान होने के बाद भी, याद रखो, ऐसे लोगों को ज्ञान होने के बाद में भी श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए, मनोनाश वासना क्षय करना चाहिए। ये बात बताने का प्रयत्न करते हैं। और कुछ जी। पढ़ो तो, अब इंग्लिश पढ़ लो। Clarification. There is no harm in this because we have accepted that for the Vidvat Sannyasin, knowledge of truth accompanies, and the other two are to be accomplished afresh by effort. For instance, aspirants entitled for knowledge are of two kinds: those who have gone through the discipline of worship, upasana, and those who are yet to undergo. Yes. Out of these, the one who has gone through upasana till realization of his cherished ideal, upasya vastu, and then attempts at obtaining knowledge, since his effacement of latent impressions and dissolution of mind are stronger, and hence his vidvat sannyasa and jivan mukti will happen of their own accord after accomplishment of knowledge. The scriptures recognize such an aspirant to be best fit for knowledge. For such aspirants, both Vividisha Sannyasa and Vidvat Sannyasa are prescribed together, although they are themselves distinctly different. Hence, they appear to be mixed up. Most modern aspirants practicing the discipline of worship attempt all of a sudden to attain enlightenment, vidya. Practicing no discipline. Practicing no discipline. Practicing no discipline of worship attempts all of a sudden to attain enlightenment, vidya, out of curiosity. They will also earn temporary effacement of latent impressions and dissolution of mind, and out of it also accomplish study, reflection, and meditation. Rigorous practice of these leads to destruction of ignorance, doubt, and opposite ideas, and consequently knowledge of truth arises very well. Counteracting causes to bring down such knowledge being absent, and because ignorance having been destroyed and with no reason to arise, that ignorance once again, the knowledge acquired will not be enfeebled, but in the absence of rigorous practice and being influenced from time to time by fructifying prarabdha karma that leads towards enjoyment, the Vashna Shaya and Manonash will be extinguished just as a lamp placed in a blowing wind. Vashishta also tells the same. This one is far more difficult among the efforts mentioned earlier. Giving up latent impression is even harder than uprooting the Sumeru mountain. Arjun also said regarding Manonash, "O Krishna, the mind is restless, turbulent, strong, and unyielding. I regard it hard as achieving control of the blowing wind, as hard as control of the blowing wind." Yes. So it is established that for the Vidvat sannyasins of these days, only the knowledge earned continues, and that they have to accomplish Vashana Shaya and Manonash by continued effort. Yes.
क्या बात कर रहे हैं हम लोगों ने जूम मीटिंग में काफी बातें समझ ली। हम समझ गए कि हम आत्मा है, हम नित्य मुक्त शुद्ध स्वभाव है, हम कभी या जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता। ये हुआ क्या, ज्ञान हुआ। जी और उसके बाद में अब 7 दिन तक हम बाहर रहे, क्या हुआ, ये ज्ञान फट से गायब हो गया। क्यों? मनोनाश, मन चंचल है और हमारी वासनाएं उदित हो रही हैं। ये हमारे सारे इस ज्ञान को एक बार साफ कर देंगे। जी इसलिए कहते हैं कि अगर ये ज्ञान में आपको प्राप्त हुआ है तो ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए मन पर संयम और इंद्रियों पर संयम और विषयों को त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। ये खास बात है इसकी, जो सारा इतना डिटेल में पढ़ा है, ये बात सिद्ध है कि महाराज ये जी, ये ज्ञान क्या ज्ञान है जो ये किस? जो जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान। नहीं नहीं, ये तो तत्व ज्ञान नहीं हुआ महाराज, ये तो सिर्फ ऑर्डिनरी ज्ञान हुआ ना, अच्छा, क्योंकि ओके ओके, गीता वो गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने क्या ज्ञान दिया था, वो बोलिए। तो वो आत्मा के बारे में ज्ञान दिया था। हाँ, दूसरे अध्याय में ही गीता में भगवान ने आत्मा के बारे में तत्काल दे दिया उसको ज्ञान। अच्छा। अरे आत्मा ने तो मरती है, न जायते म्रियते, तो हाँ, तुम क्यों इतना लोभ कर रहे हो। यही तत्व ज्ञान कहते, इसी को तत्व ज्ञान कहते। अच्छा, लेकिन ये थियोरिटिकल हो गया ना महाराज, दैट्स व्हाट आई एम नहीं सेइंग। नहीं, मतलब वही तो बात कह रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ, गीता में आगे जाके क्या कहा, मनोनाश की बात करने लगे ना भगवान ने। कई जगह कहा चंचलम, अर्जुन ने छठे अध्याय पंचनमी में कहा मन कृष्ण चंचलम ही मनो कृष्ण। रमाथि दृढ़ और जी तो आपने तत्व ज्ञान जो बात कहा है वो तो टिकने वाला नहीं है, मन चंचल है। तो जी भगवान जी जी, कहते हैं अभ्यास सिक्स जनित चैप्टर, हाँ। कौशल वैराग्य नित्य का अभ्यास जी जी वाले की क्या, इसकी प्रैक्टिस करो। जी तो महाराज। तत्व ज्ञान यही वो है, आत्मा का स्वरूप। मैं आत्मा हूँ, अच्छा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हाँ, यही आत्मा ये स्वरूप। हाँ, ठीक है, ठीक लेकिन इसको प्रतिष्ठित होने के लिए मनोनाश है, हाँ मनोनाश और वासना क्षय अत्यंत आवश्यक है। हाँ, अप्रतिष्ठित है, ठीक है। बार बार ये देखिए, कितना सारा अभी मनो ये वासना क्षय का विषय आरंभ होने वाला है, तब इंटरेस्टिंग आएगा। वासना 3 प्रकार की वासना बेसिकली बताएंगे। देह वासना, शास्त्र वासना और क्या है वो लोक तीसरी, वासना। लोक वासना। लोकवासना। हाँ, ये 3 वासनाएं खास होगी, उसको डिटेल में लेंगे। लेकिन उसके पहले डिस्कशन करके ये बताने चाहते हैं कि देखो, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ज्ञान भी होना चाहिए, मनोनाश चाहिए, वासना। नहीं इज दैट ओके? अच्छा, महाराज, यहाँ मतलब पर महाराज विद्वत सुनिए संन्यास। ना, मतलब इंद्रिय निग्रह, वासना क्षय और तत्व ज्ञान, मतलब मेडिटेशन करते रहना चाहिए। हाँ? मतलब हम लोग का जो प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे तो इंद्रिय निग्रह, वासना क्षय और मेडिटेशन कर हर समय करते रहना चाहिए। जो तुम यही आप। इतना तो तुम कब खींच लिए, अभी तो किताब शुरू ही नहीं हुई है। ओ, हम्म। अभी मन वासना क्षय पे आएंगे। नहीं, आप तो ये बोल रहे हैं ना, जैसे कि ज्ञान हुआ पर इमिडिएटली हट जाता है, तो उसके लिए हमको क्या क्या करना वो बताइए। वही 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 तो बताया है, ये बता रहे हैं। हाँ, मनोनाश वासना क्षय में लगे रहना है, ठीक है। महाराज, संयम करना है, इंद्रियों का संयम करना है, मन से वासनाओं को दूर करना है। और कैसे करना है, इसको सारा किताब इसमें है। ओके, अभी 2 चैप्टर बचे हुए हैं तो। ठीक है। अच्छा महाराज जी, ये जो तत्व ज्ञान है ये ज्ञान योग, ये होगा क्या? अब वो उसको आप बोलना चाहो ज्ञान योग बोल दो, ज्ञान योग कर दे। जी नाम बोलना चाहे तो ज्ञान योग बोल दो। ओके जी तो यहाँ पर एक बात है, दोनों ये बात आ रही है, हम्म। विद्वत संन्यास और विविदिशा संन्यास, ये 2 शब्द बार बार आ रहे हाँ जी हाँ। हैं। तो विद्वत संन्यास यानी जिसको तत्व ज्ञान होता है और उसके बाद संन्यास होता है, तो उसको विद्वत संन्यास बोलते ठीक है। हैं। और विविदिशा संन्यास जो है, वो ज्ञान अभी नहीं हुआ है, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो संन्यास लिया जाता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग हम्म सन्यासी बन गए, क्यों? हम्म इसके बाद हम संसार को छोड़ के अब ध्यान जप करेंगे, विचार करेंगे, उसके लिए फ्री होकर कर रहे हैं। इसको कहते हैं विविदिशा संन्यास, यानी यस ज्ञान प्राप्ति के लिए सन्यासी होना। ये 2 याद रख। अब हम्म आगे चलिए, कायम वासना या क्षयाय प्रवर्तितव्यम स्वरूपमा। अब क्या वासनाएं क्या है, इसको बता, प्रश्न पूछते हैं, पढ़ो। हम्म। तीसरा भुवन जी, व्यक्ति कौन हो, कोई कोई भुवन जी, चौथा व्यक्ति?
पढ़ो आपने। But if you ask, what is this Vasna, for the eradication of which effort is to be made? Vasisht explains its nature. Perceiving things with intense feeling without thinking of pros and cons is said to be Vasna. O mighty armed, because of that powerful imagination of what he thinks himself to be, that thing itself he will become, forgetting everything else whatsoever. Whatever such a person who is deluded by Vasna perceives, he takes it to be real and becomes attached to it. Since he has become subdued by the influence of Vasna, the thing he sees loses its real nature. Whatever he sees wrongly, just as a person under the influence of an intoxicant. In this connection, as a general example of Vasna, people's adherence to their own respective countries' customs and conventions, religious beliefs, form of language, and the correct and incorrect words in it, etc., can be cited. We shall deal with this later, with special reference to their variety. Having this in view, the Brihad Aranyaka Upanishad says thus: what one desires, one resolves. What one resolves, one works out. What Yes. one works out, one accomplishes. ओके ओके। तो जिसमें क्लियर कर रहे हैं क्या किया है इन्होंने, वो प्रश्न किया है कि कौन सी ये वासना है, दृढ़ वासना है जिसके द्वारा और जिसका उनको हमको निकालना है, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इसके ऊपर वशिष्ठ ने जो कहा है वो यहाँ कहा है कि पूर्वापर विचार के बिना, यानी प्रोस एंड कॉन्स सोचे बिना क्या करते हैं, कोई भी एक भावना एक विचार को लिए उसी को पकड़े रहना, उसको वासना कहते हैं। उसके बाद में क्या उसका प्रभाव क्या करता है, और सब स्मृति भूल जाता है। वो मेरी पत्नी है या मेरा पुत्र ही सब कुछ है और संसार सब भूल गया, होता है कि नहीं संसार में बाबा? होता है। इसको कहते हैं दृढ़ वासना। उसके बाद में जैसा वासना, उसकी वासना से विवशीकृत होकर व्यक्ति जो है वो संसार में सत्य क्या है असत्य क्या है वो सब समझता नहीं है। मेरा पुत्र मेरी पत्नी इसके सिवा और कुछ नहीं समझता संसार में। उसके आप कहानी सुन लो, अगर रूम में चले जाइए मीटिंग, अब इंटरनेट पे जाके और कहानियां और उपन्यास वगैरह सब बहुत सारे क्या क्या सब मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी गंदी गंदी कहानियां मिल जाएंगी। उसके वासना वेग के स्वरूप में अपने स्वरूप को भूल जाता है और दुर्बुद्धि, ऐसा दुर्बुद्धि हो जाता है जैसे शराब पी, शराब पी के जैसी हालत आदमी की हालत होती है, उसे ही संसार की वासना से वो इसका प्रकार हो जाता है। ठीक है महाराज जी, वासना और ऐशना दोनों एक ही चीज है? ऐश शब्द का फर्क और कुछ मतलब दोनों है सेम, जैसे दारेशना बोलते हैं। एक ऐशना और वासना एक ही शब्द, एक ही दो मीनिंग, एक वर्ड है। महाराज नीचे वाला लाइन समझाइए, लास्ट वाला। Yes. What one desires, one resolves. What one resolves, one work out. What one works out, one accomplishes. हाँ। पाने की इच्छा ये शास्त्र में वेदांत ने सूचित किया। जिसकी इच्छा करता है, जिसकी इच्छा करता है वही करने लग जाता है। जो इच्छा होती है वैसा ही निर्णय करता है। मैं खाऊंगा तो मैं अब जाऊंगा मार्केट में जाके फलाना फलाना खाऊंगा, रिजल्ट करता है। जैसा उसने रिजॉल्व किया, जितना संकल्प किया है वैसा वह करता है, कर्म करता है। जो कर्म करता है उसका फल उसी के अनुसार तो प्राप्त करता है। तो एक बार मन में जो विचार उठा है उसके अनुसार संकल्प होगा, कर्म होगा, कर्म का फल होगा, कंटिन्यूअस बना रहेगा। गीता में अच्छा है। मतलब ये जो वासना स्वरूप का जो प्रोसेस बताया महाराज, वो गीता द्वितीय अध्याय में भी तो वही है, वही सेम है। क्या
ये जो वासना स्वरूप का एक प्रोसेस हो गया ना महाराज, ये इंटेंसिटी, डिल्यूशन, ये सब, तो ये हाँ द्वितीय अध्याय में जो बोलते हैं कि उदयत विषयांग पुंसा, हाँ हाँ, वही 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 से अच्छा, दैट इज द सेम प्रोसेस, मतलब हाउ सेम वासना प्रोसेस कम्स है। एंड हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद महाराज जी, ये जो वशिष्ठ लिखा है, ये वशिष्ठ मुनि है क्या? हाँ हाँ राम हाँ, के बिल्कुल गुरु, राम के गुरु थे भाई। मुनि। ओके, राइट। अच्छा आगे चलिए। वाल्मीकि ने जो कहा, वाल्मीकि भेद ने वासना मैं भेद पढ़ूं है, स्वामी जी? अगर पर बिल्कुल मैं बिल्कुल, पढ़ती हूँ। प्लीज हाँ प्लीज पढ़ो। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। Valmiki describes the different vasanas thus. The vasanas are of two kinds, pure and impure. Out of these, the impure one brings about rebirth, and pure one destroys that. That which consists of stubborn ego as its nature, hardened ignorance as its shape, and causes rebirth is said to be impure vasana by the learned. And that vasana is said to be pure, which, like a baked seed devoid of sprouting, remains only for the upkeep of the body. Having been freed from future birth and having known what ought to be known, that is the self. Laghu Yoga Vasistha 1:10-12. That Yeah. which covers up the difference between the body as 5 sheets and the conscious self is ignorance. Agyana Sughanakara means that vasana which has become hardened because of such ignorance. One must understand that this vasana becomes hardened just as milk coagulates when mixed with curd and kept, or just when melted clarified butter is kept in a cool place for a long time becomes frozen. Here, hardening is to be understood as the result of successive delusions due to ignorance. This has been stated by the Lord while describing the demoniac in endowments thus. The वेट persons वेट of them. वेट, वो यहाँ तो वो चालू हो जाएगा। प्रवृत्ति निवृत्ति जनाना विदुरा संवरा, इसके पहले के बात कर लेते हैं। यहाँ पे वो बात बताई है कि जो है वासना दो प्रकार की है, मलिन वासना और शुद्ध वासना। शुद्ध वासना, अगर मैं भगवान की इच्छा कर रहा हूँ, भगवान का जन्म करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, चित्त को संयम करूंगा, ऐसी जो इच्छाएं होती हैं, इसको कहा शुद्ध वासना, और ये बिना जन्म का नाश करने वाली है। और जो घनी है, अहंकार के कारण होती है और पुनर्जन्म को पराग देती है, वो मलिन वासना है। अच्छा, और इसमें यहाँ पर कमेंट्री करते हुए जो कहा है कि वह क्या घनी हो जाती है ना, तो जैसे दूध में जैसे मलाई बन गई, घनी हो गई ना। अच्छा, अब उसका बड़ा सुंदर सुंदर दृष्टांत है ठाकुर में। ठाकुर के मन में इच्छा हुई है कि मैं फलानी चीज खाऊंगा। क्या हुआ था, कौन सी चीज खाने की इच्छा? रसगुल्ला। 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 अच्छा, वो कितना घना है सोचो तो। सुपरफिशियल, उनकी वासना कितनी सुपरफिशियल है और हम में कितनी गहरी है। ये घनी वासना और जो घनी वासना और सिंपल वासना, घनी भाव जो है वो भ्रांति के कारण होता है, लेकिन जो बिल्कुल हल्की वासना है उससे कोई बंधन नहीं होता। तो ये एक देहादी पंचकोश से और साक्षी आत्मा के भेद भाव को भेद आवरक अज्ञान जो है उससे घनीभूत होकर, यानी ठाकुर को पूरा ज्ञान है, आत्मा पृथक है और शरीर पृथक है, ऐसा व्यक्ति, उसको थोड़ा सा विचार उठा कि भाई मैं आज जरा आइसक्रीम खाऊंगा, अरे ये इसको वो वासना कहते हैं क्या? लेकिन जो व्यक्ति समझता है कि मैं शरीर वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, उसकी वासनाएं कितनी घनी होती है ये याद। ये इम्पोर्टेंट बात, यानी घनी भावश्च भ्रांति परंपरा। घनी भाव का अर्थ हुआ है कि परंपरा, वासना की परंपरा बनी हुई है, कंटिन्यूस बनी रही है। और ऐसे भाव महाराज, उसमें ये भी होता है जो ऐसा घनी भाव
वासना हो जाता है, वो उसके बारे में सोचता भी रहता है और ये सारी चीजें बस चलती रहती बस वही तो, और कुछ है ही नहीं तो संसार में। संसार में कुछ है ही नहीं इसके अलावा। सभी लोग यही तो करते रहते हैं, और महाराज। उसके बाद में कितना कष्ट भी पाते हैं। तो अपने संसार की वस्तुओं से जो घनी भाव होता है, इसलिए कष्ट भी कितना पाते हैं। महाराज इसलिए मैं महाराज अच्छा, आप लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त आप लोग बीच बीच में भगवान का नाम लेते हैं ना, वो ताकि वो। हाँ वह शास्त्र हमारे यहाँ तो भंडारा जो होता है तो उसके अंदर श्लोक बोलते जाते हैं ना। जी जी जी, एग्जैक्टली। हाँ, श्लोक बोलते जाते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि पूरा पूरा मन से खाना मत खाओ। तो खाना खाते खाते सोचते रहते हैं कि उसने श्लोक बोला, अब मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा। मैं तैयारी करते रहता हूँ, तो मन तो मेरा आधा मन का तो श्लोक में लगा रहता है और आधा मन खाने में लगा रहता है। तो Swamiji, ये है। हाँ, Swamiji, यस, Swamiji, that means that if any desire or vasana, if it's fulfilled, you don't mind, and if it's not fulfilled, you don't mind, then that's a innocent vasana, right? That's a superficial vasana, na? yes, yes. You don't worry. Let the vasanas, hundreds of vasanas will come and go away. Don't worry about them. Don't give importance. कि That's it. वासना होना ही नहीं चाहिए. No, that how can you not have a vasana? Otherwise, you will not live. Thakur used to create vasanas, na? अच्छा, अब आगे चलिए, आगे चलिए, हाँ, महाराज आगे एक चलिए। क्वेश्चन, this has been पूछूं महाराज? stated by the Lord while describing the demoniac एक मिनट, endowments. Thus, the महाराज persons of demoniac nature do not know the difference between the way of action and the way of renunciation. They do not possess purity, good conduct, or truth. They hold that the universe is without truth, without a moral basis, without a God, and is caused by the lust between the mating male and female. Holding fast to this view, these ruined souls of small understanding of fierce deeds rise up as the enemies of the world for its destruction. Filled with insatiable desires, full of hypocrisy, pride, and arrogance, holding evil ideas through delusion, they work with impure resolves. Beset with thoughts of immense cares, tending only towards death, holding gratification of lust only as the highest, and feeling sure that this is the end of all accomplishments, bound by hundreds of ties of hope given over to lust and anger, they strive to secure sensual enjoyment through hoards of wealth piled up by unjust means. Bhagavad Gita, chapter 16, 7-12. ओके ना, ये पे क्या कहा है, वो आसुर संपत्ति का जो वर्णन है ना, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया। सतीश, तुम क्या प्रश्न पूछ रहे थे? महाराज मेरा एक प्रश्न था कि एक जैसे हिपोथेटिकल क्वेश्चन है कि किसी की जो है उसको तत्व ज्ञान हुआ, जैसे आपने बताया कि भगवान ने तीसरा अध्याय पढ़ा और उसको तत्व, श्री अर्जुन को तत्व ज्ञान हो गया, और उस ये मान लो कि उसकी वासना भी प्योर है, वो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन जब तक उसका मनोनाश नहीं होगा, वासना क्षय नहीं होगी, तब तक उसको कोई प्राप्ति होगी महाराज? अरे तत्व ज्ञान हो गया है, तुमने बोला तत्व ज्ञान हो गया है। जी 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 महाराज, आपने कहा ना तत्व ज्ञान हो गया, जैसे तीसरे अध्याय में कहा कि आप श्री कृष्ण ने उनको तत्व ज्ञान बताया, उनको तत्व ज्ञान हो गया, तो उस स्थिति में उसकी वासना भी प्योर है, तो क्या उसको बिना मनोनाश और उसकी वासना शायद पूरी तरह होने से क्यों जरूरी उसके? अरे उसके शुरू में तत्व ज्ञान दे दिया और छठे चैप्टर में मनोनाश की बात में बता दी तो पूरी। जी जी जी, उसका मनोनाश तो जोड़ी है ना महाराज, मनोनाश और वासना तो जोड़ी है, उसके बिना तत्व ज्ञान भी नहीं होता। तत्व ज्ञान तो मनोनाश वासना से तीनों आवश्यक है। नहीं महाराज, जैसे कथामृत में भी तो बोला है कि कोई कोई हठात सिद्ध है, कोई कृपा सिद्ध है, वो सब फिर क्या हो होते हैं, उसके बाद में क्या होता है उनका, गिर भी उसके जाते बाद हैं में तपस्या करते हैं, ये बात भी तो वर्णन है ना।
हाँ, कभी बोला है कि पहले फूल होता है फिर फल होता है, नहीं तो फल हाँ, होता है कुछ फिर लोग फूल। तो Yes. बाद में तपस्या करते हैं कुछ लोग। Yes, अच्छा। yes, ये बात भी सभी जगह लिखी हुई है, ठाकुर ने वचनामृत में मिल जाएगा। हम्म। yes, yes. अच्छा जी जी महाराज। अच्छा, महाराज उसके जी, बाद पढ़ो आगे। हाँ, तो ये जो है ये आसुर संपत्ति की बात तभी कही गई है, ये हमने सबने पढ़ लिया है, इसमें हमको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जी। हाँ, स्वामी जी मैं पढ़ूं? Oh, yes, पढ़ो। yes. They, the demoniac people, say that the world is without truth. They postulate a world in which there is no truth of the authority of the Vedas, Puranas, and the like. It means that they do not accept the authority of the Vedas. That is why they conceive a world in which there is no God who is the creator and the sustainer. Then wherefrom this world has been generated, they say? It is said by the Lord thus, for the mutual aparaspar, par one, and apara another. This world is formed by the mutual union of the male and the female, they say. What else can be the cause of this? This is none else than lust that is the cause. They mean that the mutual lust of the male and the female is the form of a continuity or a free flow is the cause of the world. This is the meaning of what they say. ये तो तो हो ये जो है वो भगवत गीता में 6वें अध्याय That's में right. आसुर संपत्त लोगों का, जो आसुरी लोग हैं उनका बात किया है। अरे कुछ नहीं है, भगवान भगवान नहीं है, खाया पियो मजा करो, ये सब फालतू की बातें हैं। स्त्री पुरुष का भोग करना काम ही जीवन का लक्ष्य है। ये सब लोग घोर अंधकार में पड़े होते हैं, वो समझते हैं कि हम सबसे जगह बुद्धिमान है। ये बात कही। उसके आगे The कोई hardened, पढ़ेगा? sorry. The hardened ego, excessive self-conceit is also described therein. Today, this has been gained by me. This desire of mine shall I fulfill. This desire is mine and shall be mine. This enemy has been slain by me. I shall slay the other enemies. I am the Lord, the enjoyer. I am successful, mighty, and I am happy. I am rich and highborn. Who else could be equal to me? I shall carry out sacrifice. I shall give charities, and I will rejoice. Covered up in a mesh of delusions, addicted to the gratification of lust, bewildered by many a fancy, they fall down in a foul hell. ये सब वही बात बता रहे हैं, उन्हीं का वर्णन है, कंटिन्यूस कर रहे हैं। और ये सब मैंने यह सब कर दिया है, प्राप्त कर लिया है, मेरे जैसा और कोई क्या है? मैंने उस शत्रु को मारा है, दूसरे शत्रु को मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। ये सब सारी बात करते हैं। इसे गीता का। अज्ञान से मोहित होकर ये लोग नरक में, अशुद्धि नरक में पड़ते हैं। उसके आगे चलिए, इसमें कुछ है नहीं डिस्कशन का, अब दूसरा। बस आर्थिक संपत्ति। By this Okay, way, Maharaj ji, और वो भी, वो इसके बाद में और भी जो है अब वो भी चल सेकेंड रहे वाला। हैं। हाँ, वो महाराज भी जी, मैं कुछ तो दिन चलिए, आगे करिए। इसके बाद मैं में पढ़ूं? शुद्ध वासना तो ज्ञान ज्ञेया, जो शुद्ध वासना है अब ये जो शुद्ध है ये वासना। हाँ जी। इसको हम स्किप ऑफ करते हैं और उसके आगे चलेंगे। शुद्ध वासना तो ज्ञान ज्ञेया, तो शुद्ध वासना जो है, योग हाँ। वासना कौन? वहां से पढ़िए, कौन पढ़ेगा? page नया आदमी कोई page पढ़ेगा? number Why 134. this? मैं Why पढ़ती this? हूँ महाराज। अच्छा ठीक है। But the pure vasana is of nature of having grasped that Brahman, which is to be known. The nature of that Brahman, which is to be known, has been described by the Lord in the 13th chapter of Gita. Thus, I shall describe what is to be known, and by knowing which man attains immortality. It is the beginning. It is the beginningless Supreme Brahma, which is said to be neither existent or non-existent, which with the hands and feet, heads, eyes, ears, mouth, everywhere,
It exists pervading everything in the universe. It is shining with the qualities of all the senses, but yet is without the senses. It is devoid of attachment, but yet is sustaining all, free from the three gunas, but yet is their experiencer. It is without and within all beings, is by nature moving, but yet is unmoving. It is incomprehensible because of being subtle. It is far away, but yet it is near. It is undivided, but yet appears to be divided among beings. It is the creator, sustainer, and destroyer of all beings. It is light of all lights, and is said to be beyond darkness, tamas. It is knowledge, object of knowledge, and the approachable by knowledge. It is dwelling in the heart of all. Bhagavad Gita 13. यहाँ केवल भगवान कहते हैं शुद्ध ज्ञान वासना जो है वो ज्ञान में प्रतिष्ठित है। ज्ञान का स्वरूप जो है वो गीता के 13 अध्याय में कहा गया है, जो अनाविधि मत परम ब्रह्म, जो ब्रह्म का वर्णन है, सत और असत दोनों से परे है, वो सर्वत्र प्रविद्यमान है इत्यादि। यहाँ पर सारा ब्रह्म का जो वर्णन है वो यहाँ पर किया है। तो वहां पे अब यहाँ पर उसके आगे जो चीज आने वाली है वो इम्पोर्टेंट बात है। तो शिवानी पढ़ो तो। शिवानी महाराज एक मिनट बुलाता हूँ। हो गया, मैंने आगे शिवानी को किया था, बुला रहे हैं। एक मिनट महाराज। महाराज चलो दूसरा पढ़े। ये एक श्लोक है इधर, सर्वेंद्रिय गुना भाषण सर्वेंद्रिय विवर्जितम। इनको एक बार समझाइएगा, मतलब एग्जाम्पल। ये भगवान का वर्णन हो रहा है। हाँ महाराज। या सर्वेंद्रिय गुण भाषण, सर्व इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला है, लेकिन समस्त इंद्रियों से परे है। कितनी सुंदर बात है। अरे वो सब इंद्रियों को प्रकाशित करता है, लेकिन इंद्रियों को प्रकाशित नहीं कर सकती। ये बता। इंद्रियों को प्रकाशित करता है, पर इंद्रियों उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। इंद्रियां उसको छू नहीं सकती। ये बता रहे। चलो, क्या हुआ? शिवानी शर्मा वहाँ है तो? हाँ महाराज मैं हूँ, पर मेरे पास प्रिंट आउट्स नहीं है आज। मैं इसलिए नहीं पढ़ रही थी। ओके 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 ओके। किसके पास है? कौन करेगा? मैं पढ़ूं महाराज जी, मैं पढ़ूं। हाँ पंकज, कौन का? पंकज भाई। Devashish. Here, the Supreme Self is presented in its finite and infinite aspects to promote its understanding through Tattva and Sarvarupa Lokasana. Tattasala Swarupa Lakshana. Swarupa Lakshana and Tattasala Tana points it out using some accidental relation with some object. For example, Devadatta's house is the one with a crow sitting on it. Likewise, Sarvarupa Lakshana indicates the relationship with an object that persists at all times. For example, among the group of celestial bodies of the night, the most shining is the moon. Objection. It is defined earlier that giving up all considerations of antecedents and consequences is the characteristics of vasana. But the knowledge of a thing is to be obtained by inquiry into it. Hence, that definition does not cover the characteristic of pure vasana. Continue reading. Clarification. Clarification पढ़ना है? Clarification पढ़ना है? Continue. Acha, it is not correct because while defining vasana, the words
perceiving things with intense feeling are used. Just as the impure vasanas comprising of egoism, the sense of I and mine, desire, anger, etc., arise in the life without any instruction from others, because they have been practiced with intense feeling through many previous lives. Likewise, although knowledge of reality arises primarily from inquiry, when continuously and carefully practiced for a long time, makes deep impressions, and afterwards the reality becomes crystal clear, just as a jar, etc., lying ahead, without the aid of instructions, a critic or reason. Such awareness of reality coming along with the functioning of the senses is verily pure vasana, and it is just useful in the maintenance of the body and not in causing the demonic traits such as ostentation and haughtiness, nor does it cause the religious merits and demerits that lead to rebirth. Just as parched paddy, etc., is useful to fill up the granary, but not for preparing delicious rice dish or for providing fresh stock of plants. Likewise, it has to be understood here. Yes. क्या है, उसने प्रश्न किया है कि वासना जो आपने कही है, तो वो जो है कि गिविंग अप, वो क्या है कि वासना में आपने कहा है कि वो आगे पीछे का छोड़कर जो मन में उठता है वो वासना है। तो उसमें क्या है, और ज्ञान जो है विचार जन्य है, इसलिए वो शुद्ध है, उसके लक्षण है, वो शुद्ध है, उसमें कहते हैं ऐसी बात नहीं है। यानी क्या है, कहते हैं कि बट the knowledge of the thing to be known is due to an inquiry into it, as that definition does not cover। कोई बात नहीं, उसमें क्या है कि दृढ़ वासना का क्या है, those strong impressions are added to the definition। अगर दृढ़ वासना का शब्द जो यूज किया गया उसका अर्थ यही है कि उसमें इम्प्योर वासना में अहंकार दृढ़ बना रहता है, जो अभी कहा ना अहंकार होता है, ये जब निकल जाता है उसके बाद में तो हल्का हो जाता है। और यही कहते हैं कि from other positions be deeply impressed by practice through many previous lives, so the knowledge of reality although primarily arising from inquiry। ये जो विचार के द्वारा ज्ञान होता है, तो ये मत समझिए कि ये एक दिन में हो गया तो परमानेंट रहेगा, वो लॉन्ग टाइम तक जन्म जन्मांतर बना रहता है, तभी दृढ़ होता है, याद रखिए। जी एक मिनट, ये कहीं से डिस्टर्बेंस आ रहा है। Everybody should mute their Somebody has to. Everyone should mute. सबको म्यूट कर दीजिए। नहीं आ रही है। ऐसा है कि when continuously practice for a long time with care, make deep impression afterwards without help of instruction or reflection or suggestion of any kind, reality becomes visible once, even as a jar। जैसे थोड़ा विचार किया, थोड़ा समझ में आया, लेकिन बार बार उसका स्वाध्याय वगैरह करते 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 उसका ध्यान करते हुए जब गहरा मन में प्रभाव बैठेगा, तादृशी बोध अनुवृत्ति का अर्थ है उस ज्ञान की रिपीटेड व्यवहार करने से वो क्या होता है, शुद्ध वासना बन जाएगी, ज्ञान की शुद्ध वासना बन जाएगी। वो क्या है, उससे क्या है, दंभ दर्प इत्यादि असाधना आशु इत्यादि नहीं होगी और जन्मांतर भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वो मानो क्या है, उससे अगर व्यक्ति को कोई दिखाई देवे कि उसमें थोड़ी खाने की वासना है, तो वो क्या है, मानो एक दग्ध बीज की तरह है। बीज को अगर आप ऐसे ढूंढ लोगे तो दिखेगा बीज, लेकिन वो उसको उत्पन्न नहीं करेगा। तो ज्ञानी की बात या साधना की बात में ये कहते हैं कि जो हमारी वासना होती है उसे ऐसी दग्ध दृढ़ होनी चाहिए, ज्ञान की वासना दृढ़ होनी चाहिए, और दूसरी जो वासना है वो दग्ध बीज की तरह होना चाहिए। भले आदमी को दिखे कि वो लड्डू खा रहा है,
लेकिन वो लड्डू खाने का उसको प्रभाव ही नहीं पड़ता। अब इसके आगे चलिए, यहाँ से अब आगे वासना का प्रारंभ करते हैं, सच हो जाएगा। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है। मलिना च वासना मैं पढ़ू हाँ पंकज मैं भाई, पढ़ू स्वामी जी। पढ़ो पढ़ो पंकज भाई। Impure vasana. Impure Yes. vasana is of three kinds. Desire for the world, that is lok vasana. Desire for learning the scriptures, that is shastra vasana. And desire for the well-being of the body, that is deh vasana. जी Determination to lead such a life that will win acclamation and not censure from the people is called the desire for the world. Since it is impossible, the desire for the world is impure. For example, Valmiki asked Narada in so many ways thus, nowadays, who is most virtuous and brave in the world? Ramayana. Narada gave the answer thus, verily he is Rama, born in the ancestral line of Ikshvakus, famous among the people, etc. Even such great Rama and his wife Sita, who is held to be mother of the universe and paragon of feminine virtues, were scandalized in a way unheard of. When such is the case, what to say of others? Thus, for instance, people freely speak ill of others on the basis of their local peculiarities. Southern Brahmins censor Northern Brahmins as mutton eaters, who are otherwise well versed in the Vedas. Northern Brahmins return their censure, holding that Southern practice marriage with maternal uncle's daughter and also carry earthenwares as cooking utensils while traveling. The Bahurakas, the Rigved Brahmins, hold that Aswalyanya branch is superior to Kanva branch, and the Yajurvedic Brahmins consider it in the opposite way. In this way, it is well known that people starting from the learned right up to women and cowards speak highly of their own lineage, community, relations, gods, and the like, while letting down those of others. In keeping with this, it is said thus, in this world, a pure man is looked upon as a ghost, a scholar is looked upon as conceited, a forgiving person is looked upon as weak, a strong one is looked upon as vicious, a person absorbed in contemplation is looked upon as a thief. A handsome person is looked upon as lustful, and thus there is no way of satisfying all people, so one should try to achieve one's own good by all means. What can people of vain talk to? Therefore, in view of the desire for worldly name and fame being impure, the scriptures dealing with liberation deliberate that a master yogi's attitude should be alike in appreciation as well as in censure. बस ओके। क्या क्या है? 3 प्रकार की मलिन वासना आप चालू करते हैं।
लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। लोक वासना का वर्णन क्या है कि सभी मेरी स्तुति करें, कोई निंदा न करें, और मैं जैसा भी हूँ ये न इस प्रकार की सभी की प्रशंसा मुझे प्राप्त हो गए, इसको कहते हैं लोक वासना। यानी बिकम फेमस, लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो, लोग मेरे प्रशंसा करें इत्यादि, पेपर में मेरा नाम आवे। अब देख लीजिए आपके क्या, उसका ये कहते हैं कि ये असंभव है करना, याद रखिए, इम्पॉसिबल है। और फिर उसका दृष्टांत देते हैं कि राम जो है कितने महान थे। राम की बात सारे शास्त्रों में वर्णित है, उनपे तो भक्ति रामायण की इनके लिए ऐसी राम की पतिव्रता स्वरूपिणी विभूषिति जगन माता सीता के नाम पर लोगों ने ऐसी बात कही जो हम मुंह से कह नहीं सकते और बोल नहीं सकते, ठीक है ना जी। लोगों के कहने के कारण बेचारे राम ने बाध्य होकर उनको वनवास दे दिया, ऐसी स्थिति है। उसके बाद में आगे कहते हैं कि नाना प्रकार के देशाचार लोकाचार के से लोग एक दूसरे को निंदा करते हैं। उत्तर भारत के लोग एक प्रकार का व्यवहार करते हैं, दक्षिण के भारत के लोग उस प्रकार के व्यवहार की निंदा करते हैं। इसका सब उन्होंने कहा है कि वो कुछ खाना इस प्रकार खाते हैं, विवाह इस प्रकार का करते हैं, दूसरे लोग पसंद नहीं करते हैं इत्यादि। फिर आगे आखिर में कहा है कि जो शुद्ध रहता है तो उसको कहने पिशाच है, जो शांत रहता है विचक्षण रहता है करे उसको कुछ नहीं जानता है, जो क्षमाशील है तो कहता है बदमाश, इसमें दुर्बलता है, जो बलवान है वो कहते समझते हैं कि ये दुष्ट है, चुपचाप रहने वाला कहते हैं अरे चोर है ये, और जो सुंदर दिखता है कहते हैं अरे ये कामी है, बदमाश है। लोगों को कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर सकता। संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे आप संसार के सभी लोगों को संतुष्ट कर सके। इसलिए लोक वास्ता करना कि मैं लोगों के में प्रसिद्ध होऊंगा, लोग मेरी स्तुति करेंगे, ये वासना जो है मलिन वासना है, वासना है, कभी संतुष्ट नहीं हो सकेगी। आपका मन जो है वो संसार में चला जाएगा और भगवान के तत्व में भी मन नहीं लगेगा। ठीक है। हाँ महाराज जी, आपने ये एक्सप्लेन किया है सिर्फ लोक वासना का, व्हाट अबाउट शास्त्र वासना, देह वासना? चलिए ना, पढ़ने तो दीजिए हमको। अच्छा, चलिए शुरू कीजिए। शास्त्र वासना त्रिविधा कौन पढ़ेगा? जिसने अभी मैं तक नहीं पढ़ा पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ महाराज शिवानी, फोन से पढ़ती हूँ। जी जी। The desire for learning. Maharaj, the desire for learning is also of three kinds: attachment to study, hankering after many disciplines, and attachment to rituals. One can see the desire for learning in Bharadwaja. Having studied the Vedas for 3 human lives in series, when tempted by Indra, again attempted in his 4th life to study the residual portion of the Vedas. Since this type of continuous study is impossible, the desire for learning is impure vasana. And Indra, having restrained him from study, after convincing that this is impossible, instructed him into the discipline of conditioned Brahman for the accomplishment of a life's purpose of a higher order. All this is to be found in Tatra Brahman. Yes. दुर्वासा आगे पढ़ो। In the same way, attachment to the study of a variety of scriptures is an impure desire. Since the final goal of life cannot be attained by this, this is to be found in Kavasya Gita. Thus, a sage by name Durvasa came to salute the great Lord Shiva with a load of various books on scriptures.
Yes. In that assembly, sage Narada compared him to an ass carrying loads. By this, Durvasa became angry and threw those books into the salty ocean, and then got instructed into the discipline of self-knowledge by the great Lord. For a person not in draw, who has not procured the grace of his precipitor, self-knowledge is not acquired by studying the Vedas alone. And the Shruti and the Shruti also says the same. This Atman cannot be obtained by instruction, nor by intellect, nor even through much hearing about the scriptures. Also, it is said in other places, what is the use of chewing the parched garment of the variety of scriptures? Yes. Those who are supposed to be learned in the truth should strive to search for the inner light. One who has not known the truth of Brahman, even after studying the 4 Vedas and the Dharma Shastras many times, is like the ladle that knows nothing about the taste of the delicacy. Followers of Chandogya, थोड़ा रुको, जी महाराज, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा एक बार। हाँ जी, क्या है, शास्त्र वासना 3 प्रकार की वासना होती है। पाठ वासना यानी पढ़ना खूब है, दूसरा है बहुत से शास्त्र पढ़ना है, और तीसरा है अनुष्ठान व्यसन यानी पूजा इत्यादि करने का। ये पूजा करेंगे तो पंचोपचार दशोपचार करेंगे, इसको भी शास्त्र वासना में लिया। अब वो शास्त्र वासना भारद्वाज में थी, उसका दृष्टांत देते हैं कि उसने 3 जन्मों तक 3 वेदों को पढ़ा, उसके बाद में चतुर्थ जन्म में चतुर्थ वेद करने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए जन्म ग्रहण किए वापस। उसके बाद में जब बच गया तो उसके बाद जब पढ़ने लगा तो उसके बाद में नारद ने उनकी निंदा की है सब। उसके बाद में कहा उससे है, उसके बाद दुर्वासा ऋषि की बात कही, वो भी है। वो क्या है, उसने बहुत सारे पुस्तकें एक बैलगाड़ी में रख के आया भगवान को, महादेव को प्रणाम करने के लिए। तो नारद ने उसको टॉन्ट करते हुए कहा, फारवाही गर्दभ, यानी जैसे गधा के सिर के पे गधे के ऊपर बोझ भरा हुआ है, इसी प्रकार तुम्हारे सिर पे भी बोझ भरा हुआ है। उसको करके उन्होंने सारी पुस्तकें फेंक दी, और उसके बाद में आत्म साक्षात्कार के लिए महादेव से उन्होंने प्रार्थना की, और उनसे प्रार्थना प्राप्त करके उनको प्राप्त किया। और श्रुति ने भी कहा है, प्रसिद्ध है कठोपनिषद का, कि यह आत्मा जो है प्रवचन से, मेधा से, बुद्धि से या बहुत सारे शास्त्र पढ़ने सुनने से नहीं हो सकती। और फिर आगे कहा है, तो शास्त्र कंथा कंथोर मंथने में वृथा कि बहुत शास्त्रों के कंथा यानी जो शास्त्रों को यहाँ पर कहा है चिथड़े बोलते हैं ना, कंथा हमारे चिथड़े हैं, बहुत सारे चिथड़ों को मिला के उनको खींचने पीसने से क्या फायदा होगा, यानी इस प्रकार से कहते हैं। या फिर गाय जो है अपने मुंह में चारा रख के और जुगाली घुमाती रहती है, बार बार घुमाती रहती है, उससे कुछ नहीं होता। इस प्रकार से कई शास्त्रों के कोटेशन से बताया गया है कि अरे फालतू शास्त्र पढ़ने से कुछ काम नहीं होने वाला। ये ठाकुर हमारे यहाँ पे, इन्होंने अभी तक इसके पहले जीवन मुक्ति के पहले ठाकुर नहीं हुए थे। ठाकुर होते तो ठाकुर कोट कर देते कि ठाकुर तो कुछ पढ़ाई नहीं हुआ। महाराज स्वामी जी भी बोलते हैं ना, लाइब्रेरी जो होती ऋषि होती, अगर ऐसा होता तो स्वामी जी ने भी बोला है। पढ़ो महाराज आगे। 2 लाइन और है। Followers of Chandogya Upanishad state that Narada,
although well versed in the 64 arts and disciplines, was remorseful for having not known the Atman and hence approached Sanat Kumara. This is the gist of the teaching found in the Chandogya Upanishad. That's it. ये जो हुआ नारद की भी बात कही, वो भी कहे, नारद कहे कि मैंने इतना सब पढ़ लिया है, कुछ नहीं हुए। तो सनत कुमार के बाद जाके उसकी ज्ञान अब जो बता रहे हैं वो इसी के अंदर अनुष्ठान व्यसन, ये तो शास्त्र व्यसन की बात है ना, शास्त्र व्यसन में ही मिला हुआ है अनुष्ठान व्यसन। ये करूंगा, वो करूंगा, इसकी पूजा करूंगा, इसको पढ़ लो। निगाह निराग कौन पढ़? तो मैं पढ़ रहा हूँ महाराज। अरे ये पढ़ रही ना, पूरा कंप्लीट कर लो। In the Vishnu Puran, is it to be found attachment to rituals as in the case of Nidagha? In the Vasishtha Ramayana is to be found the case of Dasura. In spite of being repeatedly warned against by Rahu, Nigada could not get rid of this disease of obstinate adherence to rituals. And Dasura, because of his accidentally obstinate adherence to rituals, could not find a place for performing his rites wholly enough on the whole of earth. This desire for rituals is impure, since it brings about rebirth. The followers of yes. ये क्या है कि जो दूसरी बात जो कहते हैं ये रिचुअल करना, तो अच्छी जगह पूजा करना, तो एक आदमी को पूजा के लिए ठीक जगह ही नहीं मिली बाबा। हमारे यहाँ तो क्या है, गंगा जल छाट दिया और जहाँ पे भी है वह पूजा कर ले, एक उसको अच्छी पूजा ही नहीं मिली। इसके कई दृष्टांत है, इससे हमको, क्योंकि हम लोग तो करते नहीं है, इसको वो छोड़ देना। और उसके बाद में मुंडक उपनिषद में ये प्लवाही अष्टोत्तर शतवैरव ये शुकर्म, ये वाला जो पोर्शन है उसको छोड़ लेते हैं ये। और इसके बाद में है ये भगवत गीता का है, उसको दे तो कौन लेगा? शिवानी तुम्हारा हो गया, कौन लेगा? निवेदित जी The Lord also has said the same, O Partha. The unwise who are interested in the Vedic expression mentioning the fruition of the rites, and who argue that there is nothing else other than the rites that beget fruition of the worldly good, who are full of desires and consider heaven as their highest goal, are carried away by the flowery words about fruition of the action that are said to result in rebirth, attainment of pleasure, power, etc. As they remain interested only in wealth and enjoyments, their intelligence, which discriminates between the right and wrong, will not be well set and steady. Yes. O Arjuna, the Vedas deal with the action pertaining to threefold. The psychic mode, therefore, to be free from the threefold qualities of the mind, to be free from the dualities like the pleasure and pain, be ever firmly fixed in reality, not caring for the acquisition and upkeeps, and be established in the self. To the Brahman who has known Brahman as and Vedas are much used as the water reservoir, like wells, tanks, where there is a flood of water everywhere. Bhagavad Gita 2nd. क्या बात है निवेदिता? हाँ जी। तुम्हारा अगर तुम्हें शास्त्र का व्यसन हो गया क्या? अभी तो बोले जाते हो, बोलने नहीं देते। क्या महाराज, क्या महाराज? मैंने बोला ये शास्त्र व्यसन है ना। हाँ। और तुमको भी व्यसन हो गया, एक के बाद एक खुद ही बोलते चले जाते, बेचारे किसी को बोलने नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं, दिलीप भाई बोले कि आप पढ़िए, ऐसा बोला। अरे दिलीप भाई
पढ़ रहे हैं क्या बात है? दिलीप भाई ने और बोला भाई इसलिए कई पढ़ा लोग नहीं मैंने। पढ़ रहे, कोई एक एक बार करके किया है, एक बार भी नहीं किया है, ये क्या बात? सबको एक एक करना चाहिए ना सबको। हाँ तो यहाँ पे भी ये प्रसिद्ध है, गीता का है हाँ कि हाँ। जो बड़ी पुष्टता बढ़िया 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 वाक्य करते हैं, वाणी वाणी बोल देते हैं, वेद का उच्चारण करते रहते हैं, तो कहते हैं कि और वेदों की सिवा नहीं है, ये सब जितना है स्वर्ग में भोग करना चाहिए। तो भोग में जिसकी स्वर्ग के भोग में जितनी आसक्ति है, वो लोग व्यवसाय आत्मिका बुद्धि या आत्म तत्व की बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ये स्वामी जी, ये भगवान कहते हैं। जो लोग निस्त्रैगुण 3 गुणों के परे चले गए हैं, वे बंध रहित हो गए हैं, सत्व में प्रतिष्ठित हैं, और निर्योग योग क्षेम की जिसको चिंता नहीं है, आत्मा में प्रतिष्ठित है, वही वो लोग ब्रह्म को जानते हैं। अच्छा, महाराज तो ये महाराज जी, शास्त्र वासना की बात है। महाराज जी, थ्री फोल्ड साइकिक मोड बोला, ये थ्री फोल्ड साइकिक मोड क्या है? कहाँ कहाँ पे है, कहाँ? पांचवी इसी में लाइन है है, महाराज। नीचे से पांचवी लाइन। सत्व रजस तमस। त्रैगुण्य विषय वेदा त्रैगुण्य विषय। निस्त्रैगुण्यम भव। सत्व रजस तमस। त्रैगुण्य का तो नहीं, थ्री फोल्ड त्रैगुण्य विषय, 3 गुणों से संबंधित वेद। तो थ्री फोल्ड का अर्थ है सत्व तजो तम, सत्व रज तम। ये तमस। 3 प्रकार से वेद जो है वो तीनों के गुणों के संबंध ही बात करते हैं, उसके बाहर नहीं जाती ये बात है। और अच्छा। अर्जुन तुम भी 3 गुणों के परे चले जाओ, यानी वेदों के परे चले जाओ, द्वंद रहित हो जाओ। और शास्त्र वासना की दूसरी समस्या है, ये भी पढ़ लो, कौन पढ़ेगा अभी? तो रेणुका तुमने नहीं, पढ़ा? रेणुका के पास किताब ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो फिर। कुंडो कुंडो सतीश विवेक, आशीष आशीष अग्रवाल किताब नहीं है? नहीं, Yes, सतीश महाराज जी। ठीक है फिर। Desire for learning. रेखा पढ़िए। The desire for learning is impure because it causes haughtiness. In the 6th chapter of Chandogya Upanishad, the followers state that Shvetaketu, having learned all Vedas in a short time, became haughty and did not behave humbly even with his father. Chandogya Upanishad 6. Similarly, the Kaushtikas, the Vajrayanias declare कौष्टिकी उपनिषद, ब्राह्मण कौष्टिक उपनिषद, कौशितकी। जी कौष्टिक उपनिषद, कौष्टिक उपनिषद similarly the and Kaushtikas, the Vajrayanias declare Kaustiki Brahman Upanishad 4 and Brihadaranyaka Upanishad 2.1 that Balki was proud as he knew several forms of worship. He moved about in a conquering spree to many countries like Ushinara and humiliated many Brahmins. Finally at Varanasi, he had the audacity to instruct even Ajatashatru, the most eminent among the knowers of Brahman. अच्छा, यहाँ पे शास्त्र वासना जो है उससे घमंड हो जाता है और उससे लोगों की निंदा करने लग जाते हैं, उनकी हम जैसे कहते हैं ना, उनको उनको इंसल्ट करने लग जाते हैं। तो ये यहाँ पर वर्णन करते हैं, ये कौशिक के उपनिषद के अंदर बालाकी कहना ही है, बालाकी ना श्वेत केतु वो सब हो गया, वेदों को पढ़ लिया, शास्त्र को अज्ञान हो गया, पिता को भी उसने पिता को इंसल्ट किया, पिता को भी उसने धृष्टता, पिता की भी धृष्टता की, और उसके बाद में सब लोगों को, पंडितों को ह्यूमिलिएट करके उसकी उपेक्षा और उनका निंदा अपमान करते हुए ब्राह्मणों को भी वो काशी में गया। और काशी में क्या हुआ, वहां पर जाकर उसने अजातशत्रु, वहां पे अजातशत्रु को उसने उपदेश देने का प्रयत्न किया, वहां पे वो डिफीट हो गया। अच्छा, इसके आगे पढ़े, देह वासना आ जाए।
चालू करें? देह वासना नहीं है ही नहीं, बस और खत्म। नहीं है महाराज, आज यहीं तक था। फिनिश, यहीं पे फिनिश है, क्या बस खत्म? खत्म। अच्छा, तो यहाँ तक गया। आज कल से नेक्स्ट टाइम से देह वासना स्टार्ट हो। ठीक हाँ है? जी जी। अच्छा, तो हम शांति महाराज जी, शांति करते हैं। कुछ महाराज जी है? एक छोटा क्वेश्चन करूं? हाँ करिए ना। और छोटा बड़ा की, छोटा मत बड़ा की। महाराज जी, ये तो पूरा टेक्स्ट हम लोग पढ़ लिया। उसमें तत्व ज्ञान, मनोनाश, एवं वासना लय, ये तीनों हाँ। को बहुत बार इधर उधर करके हम लोग देखा है। तो स्वामी विवेकानंद जी का तो तत्व ज्ञान हो गया था, आत्मदर्शन हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन उनका जितना वासना था कि एक रामकृष्ण मिशन हो जाए, एक पब्लिकेशन हो जाए, उसके बाद एक मठ बन जाए, ये बन जाए, ये सब तो वासना क्या है? वासना नहीं वो है क्या? लोक संग्रह है, वो थोड़ी वासना है। वो ठाकुर उनमें तो वासना नहीं थी। वो प्योर श्री राम, वासना। याद रखिए। चुप, मेरे को बोलने दो बाबा। वहां पे वो ठाकुर ने कहा कि तुम कर्म करो, मैं कर्म नहीं करूंगा। उनकी कोई इच्छा नहीं थी कर्म करने की। मैं ध्यान जब मैं डूबा रहूंगा। ठाकुर ने कहा कि तेरा हार्ट, तेरी हड्डी काम करेगी। और उसके बाद श्री राम भगवान नरेंद्र को लगा कि मुझ में शक्ति प्रवेश हो रही है, मतलब एक्सपीरियंस हुआ उसको। श्री राम कृष्ण की महासमाधि के पहले 3 दिन पहले उन्हें लगा जो एक शक्ति मुझ में घुस गई है। और उसके बाद में वो कर्म करने लगे। वो कहते थे कि ये ऐसी शक्ति, ठाकुर की शक्ति मेरे में प्रवेश हो गई है, मुझ में रेस्ट नहीं लेने देती। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट थे ठाकुर के, क्या पूछिए। ये ये वासना उनकी नहीं है। इच्छा से नहीं करते हैं, ठाकुर की इच्छा से करा रहे हैं। ठाकुर ने मेरे को स्पष्ट रूप से कहते That means these are all exceptions. हैं, जी सर ये अवतारी पुरुष है। अगर नहीं तो फिर कहते हैं ठाकुर ने क्यों किया? नहीं अरे ये महाराज जी, उनका अवतार हैं। हाँ हाँ, मत प्योर ये वासना अवतार होगी ना ये तो। और कहते हैं मतलब फिर ये ब्रह्मेशानंद क्यों करते हैं? प्योर वासना है, प्योर Pure वासना है आपका। नहीं नहीं, क्योंकि हम सताते हैं आपको, we will अरे not let you अरे sit. कुछ नहीं, मैं अपने चित्त शुद्धि के लिए कर रहा हूँ। मैं तो आपको कर्म जरूरत कर रहा नहीं हूँ, है। तो ये सेवा में थोड़ी है। शास्त्र अध्याय कुछ नहीं, अपनी चित्त शुद्धि के लिए कर रहा हूँ बस। हमको बुद्धू मत बराबर। बनाइए। महाराज जी, हम ये लोग को जो भी चित्त हम महाराज जी, बुद्धू नहीं है। ये अरे जो 16 डिसाइपल्स है, 16 डिसाइपल्स ऑफ श्री रामकृष्ण, ये लोग तो सबका वासना लय लय हो गया था, मनोनाश हो गया, तभी भी इन्होंने सब काम हाँ, किया तो था। जिन लोगों They are all against the scriptures. जिन्होंने इन लोगों ने, अखंडानंद जी ने कितना काम किया, याद रखिए। बहुत काम किया। ये बहुत रिलीफ वर्क किया उन्होंने, बच्चों के लिए किया, कितना सब किया। ये अपनी कोई वासना से नहीं किया इन लोगों ने। ये लोक हाँ, संग्रह ये तो जीवन वासना मुक्त से है। बिल्कुल जीवन मुक्त है वो तो। बहुत सारे सीनियर्स बिल्कुल कोई वासना के कारण उन्होंने नहीं किया। उनको भी ठाकुर बहुत की प्रेरणा। प्यार से और उनको अखंडानंद जी तो करते थे, बाप रे, मैं चक्कर कोई में ना फंस कोई काम जाऊंगा। यहाँ करते पे रहिए, गरीब कोई ना लोग कोई देखे हॉबी हैं, करते रहिए। अनाथ और लोग देखे हैं, आउटडोर खाने को नहीं है। तो उसे दूसरे दिन भागने की कोशिश कर रहे थे, निकल के भागो, तब ठाकुर का दर्शन हुआ। ठाकुर ने कहा, ठीक ठीक यहीं ठहर जाते, यहीं ठहर। बार बार दर्शन हुआ, यहीं ठहर जा, या कुछ होगा। ठाकुर ने उनसे सब करवाया है। अखंडानंद जी मालूम है ना, रिलीफ वर्क वगैरह सब पूरा उन्होंने सारा, तो मुर्शिदाबाद वगैरह में सब मुर्शिदाबाद में। भारत शारगाची में हुआ था वो ठाकुर का। हाँ, ठाकुर मठ। चारगाची। आपके घर हाँ, में। सारगाछी। तो भाई क्या ये तो वो अब हमारे को कोई दर्शन वर्शन नहीं हुआ, कोई आदेश नहीं हुआ है। हम अपने चित्त शुद्धि के लिए कर रहे हैं। कम से कम ये 2 महीना, दो 2 घंटा 1.5 घंटा जो है बढ़िया टाइम अच्छा बीतता है। आप लोगों से बातचीत करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, बढ़िया रहता है। ये काम से हमको मिलता है। नहीं महाराज हम जी लोग बड़ा भी अच्छा है। महाराज जी, हम लोग भी आपके इंतजार करते रहते हैं। एक वीक कब दर्शन मिलेगा आपका, कब आपसे सुने, पूरा हफ्ता कब अच्छा आपसे जाता है। सुने। वेरी नाइस। जो हो अपनी कृपा से अच्छा चल रहा है। ठीक है जी जी महाराज जी। अच्छा,
ओम शांति शांति हरि ओम। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री राम।